ना आप लोग वो बनाओ, इंटरेक्टिव बनाओ. D has four lobes. Okay, D has four lobes. This four lobes oriented, how it will be oriented? Actually, orbitals means how the lobes are oriented in Cartesian coordinate directions, x, y, z direction. So D has four lobes, and this four lobes oriented between x and y, or we can say it will be x and z, or we can say between y and z. So now you see, so D, what is the orientation of D lobes, D orbitals? So D orbitals oriented between the axes. First is between the axes. And between the axes, it can be oriented in three forms. Between x and y, that is dxy. Between x and z, that is dxz. Between y and z, that is dyz. Is any more possibility between the axes? No. So D has three orientation between the axes. Okay, but there is four lobes, so there is a more possibility about orientation. How it will be more oriented? It can be oriented between the axis and along the axis also. Along the axis, it will be on the axis, or we can say along the axis on x and y. So when it is oriented between x and y, that is xy. But when it is oriented on the axis, x and y axis, that is called dx square and y square, because two lobes are on x, so x square, and y square dash you can see, or minus you can see. Now the fourth type orientation, but on the axis only one time it can orient. If it has been oriented x and y, then it cannot be further oriented once more on any one of the axes. So now only one axis is left, that is z axis is left. So the two lobes are oriented on the z, and the two lobes also oriented on the z in the back side, from the back side, or that is oriented in this type. So this is called dz square. So now there is a, you can see there is a 5 type of orientation for d orbitals. Between the axis, 3 types. On the axis, 2 types. So total it is 5 orientation. D orbitals have 5 type of orientation. So basically that's why we say the D has 5 orbitals. dxxy, dxz, dyz, dx square, y square, dz square. So there's a 5 orientation. You can say -2, -1, 0, +1, +2. Number also you can say. Okay. So this is called orientation of d orbitals. And you also see all having the same energy, and this is the reason they are called degenerated. What is the meaning of degenerated? Same energy, degenerated d orbitals. So d has 5 orbitals, but all 5 orbitals having same energies, and so due to same energy they are called degenerated 5d orbitals. So there is a 5 degenerated d orbitals. Is it clear? So I ask कि why इनकी एनर्जी सेम होती है या फिर कंपेरेबल होती है? सेम होती है. When I ask कि why p has 3 orbitals, so you can say because p has 3 type of orientation possible on x direction, y direction, and z direction. Why d has 5 orbitals? Because it has the 5 orientation possible between and on the axis. Okay. तो वी हैव नॉट टू स्टडी अबाउट डी और एफ ऑर्बिटल, बट अगर एफ की बात करेंगे तो उसकी ओरिएंटेशन 7 टाइप से पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज उसमें 2 लोब्स और बढ़ जाते हैं, तो उसकी ओरिएंटेशन की पॉसिबिलिटी 2 और बढ़ जाती है. ठीक है, लाइक दिस. So we can say what do you mean by orientation of orbitals. How many students have understood? Raise the hand.
Those who have not, those who have understood, raise the hand. SPD. ठीक है? Okay. How much time? What is the time now? अच्छा, लास्ट हम बता ही सकते हैं, खत्म कर देते हैं इसका. तो d orbital magnetic quantum number basically explain about the orientation of orbitals. Is it clear to all of you? So this is magnetic quantum number, which tells about the number of orbitals and how it is depends on L value. And second, it tells about the orientation of orbitals, how orientation along Cartesian coordinates, that is x, y, z direction. And next, it tells about, ठीक है, हो गया. लास्ट हम चौथा क्वांटम नंबर भी फिनिश कर लेते हैं. द लास्ट फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर. एकदम 5 मिनट लगेगा. क्या टाइम हो रहा है? व्हाट इज द टाइम नाउ? ओके, 44. बस एक मिनट. Spin quantum number, which is indicated by ms. Spin quantum number tells about the orientation of, डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ, उसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं. ओरिएंटेशन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वहां पे वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, ये ओरिएंटेशन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है. ठीक है? ओरिएंटेशन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स वेदर क्लॉकवाइज or anti-clockwise. And this is the number, ये भी एक number ही है, तो we can say कि spin quantum number has two numbers, that is plus half and minus half. So spin has two number, plus half and minus half. So one can be clockwise, so another will be what? Anti-clockwise. Okay, like this. Suppose in s orbital there is a two electron. So one is this direction and there is a anti-direction. Suppose if it is clockwise, this is anti-clockwise. So if this number is plus half, this number will be minus half. But if there is only one electron in s orbital, so we can say it may be clockwise, it may be anti-clockwise. So this value will be either plus half or minus half. In that case, we cannot लेकिन अगर decide. एक मैम लेकिन अगर एक ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फिर मैम वो पहले कौन सी वो स्पिन में लेगा? कोई भी ले सकता है कोई भी ले सकता या है. फिर अगर एक ऐसे होता इलेक्ट्रॉन कि है तो फ्री है. पहले प्लस हाफ लेगा फिर माइनस हाँ हाफ हाँ लेगा? हाँ हाँ. अब जैसे आपकी जो डेस्क में, आप क्लास में डेस्क में बैठते हो, तो एक डेस्क में दो बच्चे बैठते हो ना. स्कूल में आप अपने जो डेस्क में बैठते हो, जब क्लासरूम में डेस्क में बैठते हो, अगर एक डेस्क में एक बच्चा बैठ रहा है तो कभी वो इधर शिफ्ट करता है, कभी इधर शिफ्ट करता है, कहीं भी बैठ सकता है ना. राइट में बैठे, यस लेफ्ट मैम. में बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अगर क्लास में दो, उसी डेस्क में जब दो बच्चे बैठते हो तो फिक्स हो जाता है. क्लास में कम से कम एक क्लास में तो वही बैठते हो ना जिस क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ सपोज. तो जो बच्चा लेफ्ट है, थ्रू आउट द क्लास में लेफ्ट ही बैठा रहता है और राइट बैठा रहता है ना. ठीक है? तो अगर किसी भी ओके डेस्क में मैम. एक, हाँ, किसी भी डेस्क में एक बच्चा बैठा तो लेफ्ट बैठे राइट बैठे कुछ भी कर सकता है. बट अगर दो बच्चे बैठे हैं तो एक लेफ्ट बैठेगा तो दूसरा राइट बैठेगा. वो भी फिक्स नहीं है कि अक्षत रोज लेफ्ट ही बैठेगा, आर्यन रोज राइट ही बैठेगा. जो पहले, अब कभी अक्षत आज लेफ्ट बैठ गया तो आर्यन राइट बैठ गया, आर्यन अगले दिन पहले लेफ्ट बैठ गया तो अक्षत उल्टा हो गया. ठीक है? तो यहाँ पे ये होता है. बट अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है तो एक लेफ्ट होगा तो एक राइट ही रहेगा, यानी एक प्लस होगा तो एक माइनस ऑफ होगा. बट एक है तो कुछ भी हो सकता है, एनी डायरेक्शन. तो जैसे तुम्हारे क्लास में एक जनरल एवरीडे लाइफ में जैसे तुम देखते हो ना, वही इलेक्ट्रॉन्स का भी नेचर होता है. जो तुम्हारा नेचर है वही इलेक्ट्रॉन्स का भी नेचर है. अगर इलेक्ट्रॉन्स इकलौता है, घूमे इधर घूमे उधर घूमे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं मर्जी उसको जो अच्छा लगता है उधर बैठ जाता है. क्योंकि वो इधर बैठे बात बराबर, इधर से घूमे उधर से घूमे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. हाँ, जब दो होंगे तो आपस में ऑब्वियस है कि लड़ाई तो नहीं होगा ना. लेफ्ट में तुम बैठो रहे हो और तुम्हारे गोद में बैठ जाए आर्यन, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि अक्षत बैठा उसे मुझे तो इधर लेफ्ट ही बैठना है. ठीक है? तो तुम्हारे अगर उसको भी लेफ्ट में बैठना है, तुम्हें भी लेफ्ट में बैठना है, तो गोद में बैठेगा तो कोलिजन हो गया ना, अनस्टेबिलिटी आ गई ना. होल डे तुम्हारे लैप पे वो पूरे दिन बैठेगा, इतना भारी भरकम इंसान नहीं होता है ना ऐसा. तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी ऐसा, अगर एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में आ गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली वो राइट में आ जाता है, या राइट में है तो ऑटोमेटिकली वो लेफ्ट में आ जाएगा. तो ये ऑटो प्रोसेस होता है. ठीक है?
ओके बस एक सेकंड खत्म कर देती हूँ। यहाँ पे एक चीज तुम्हें बता था, जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये फ्रीली मूव कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एक सेकंड। So in an orbital, if there is a paramagnetic substance, in an orbital, if there is only one electron, that substance is called paramagnetic. Means अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, वीकली अट्रैक्ट होता है, ठीक है, अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। बट इफ देयर इज अ टू इलेक्ट्रॉन्स, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसका नेट वैल्यू जीरो हो जा रहा है, प्लस हाफ माइनस हाफ, नेट वैल्यू जीरो हो गया, तो ये सब्सटेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक का मतलब होता है विच इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। कहीं नहीं जा रहा क्या पेन को, सॉरी, क्या है इसमें। ओके समझ में आ गया क्या बोला मैंने? हेलो, यस ठीक है। सो देयर इज अ टू सब्सटेंस, इसको इरेज कर दूं। देयर इज अ टू सब्सटेंस, paramagnetic means unpaired electron, paramagnetic means unpaired electron, and diamagnetic means paired electron. So if there is an unpaired electron, substance is called paramagnetic and that attracted towards magnetic field. If electrons are paired, that substance is called diamagnetic and which is repelled by magnetic field. So yeah, spin quantum number। और ये जो मैंने तुम्हें थोड़ा सा बोला, एक फॉर्मूला बता देती हूँ, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन, एन प्लस क्या होता है, वन होता है कि टू होता है, एन प्लस म्यू, एन प्लस टू होता है शायद, ठीक है। ये म्यू जो तुम्हारा हो गया, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट, और जो तुम्हारा एन है इट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे नंबर फर्स्ट केस में देख सकते हो, इस केस में देख सकते हो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वन ना, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई वन, ठीक है। तो अगर एन का वैल्यू वन है तो वन, वन प्लस टू, कुछ तो वैल्यू आएगा इसका। अच्छा यूनिट होता है बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, बी एम मतलब बोर मैग्नेट्रॉन। और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, जीरो। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, तो डायरेक्ट magnetic moment value is also what, zero. And if magnetic moment value is zero, that substance is called diamagnetic, means that will be not attracted by magnetic field। वैसे तुम देखते हो ना, मैग्नेट के पास कोई चीज ले जाते हैं तो अट्रैक्ट हो रहा है, तो अट्रैक्ट का मतलब वो पैरामैग्नेटिक है। अगर तुम मैग्नेट के पास ले जाते हो रिपेल होता है, दैट सब्सटेंस इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? मैम आपने मैग्नेटिक मोमेंट का आपने क्या वो सिंबल दिया है? मैग्नेटिक मोमेंट का म्यू, ओह म्यू ऐसे जो होता है ना, म्यू, ओके मैम। ठीक है। एक सेकेंड, एक लास्ट, तो फटाफट बताओ, एन क्वांटम नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल्स नंबर एंड ऑफ शेल्स, एंड एनर्जी ऑफ एनर्जी शेल। ऑफ शेल्स। अच्छा अब छोड़ दो, ये भी तुम छोड़ दो, जस्ट एक सेकेंड। व्हाट इंफॉर्मेशन, बस लास्ट एक दो, एक मिनट और लगेगा। व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम एन, एल, एम, एस, ये तो शेल बताता है, ये सब तो चीज हम कर चुके हैं, ये सब शेल बताता है, ठीक है। ये तुम्हारा ऑर्बिटल बताता है, ये तो हम कर चुके हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। बट एक्चुअली इंफॉर्मेशन अब पूछा जाए तो क्या बताओगे कि एन क्या इंफॉर्मेशन देता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, इट गिव्स अबाउट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, it gives about the shape of orbitals, it give the information about the ओरिएंटेशन ऑफ orientation of ऑर्बिटल्स, orbitals, it gives about the स्पिन ऑफ orientation of इलेक्ट्रॉन्स, spinning of electrons, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब तुम्हारे एग्जाम में अगर आता है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बताओगे कि क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। तो एन जो इंफॉर्मेशन देता है वो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स वर्ड लिखोगे, नॉट ये सब, ऑर्बिटल्स ही लिखोगे हर जगह, ठीक है। एंड इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड दिस टेल्स अबाउट द, ठीक है।
ये हो गया, बस सम अप हो गया. तो नेक्स्ट डे विल डिस्कस द क्वेश्चन. ठीक है. सो वी आर इन सेकेंड.